Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello learners and friends, welcome back to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be as fit as fiddle. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you, मैं आपसे request करती हूँ, kindly subscribe this channel and also share it with your kids and kins. So, dear learners, as we know that we are discussing at this platform right away the parts of speech, हम parts of speech कर रहे हैं, and in the same series today's topic is verbs, right? The next parts of speech. So without wasting much time, let's understand कि verbs होती क्या है. I know most of you might be aware with these parts of the speech, but from my side मैं अपनी तरफ से clear करना चाहती हूँ each parts of speech in detail, and you know few are giving request messages, sending request messages कि subject verb conjugate करा दीजिए, preposition करा दीजिए. So we will do each and everything here at this platform of Gleaming Grammar, but just let me complete the concepts here, right? Because I believe a lot in concept clearing. Alright, तो वापस आ जाते हैं, right? On the same topic which we are here to discuss today. तो आज हम verbs discuss करने वाले हैं. So verb होती क्या है? Basically it's a verb. It's a word that indicates a physical action, right? It can be a mental action also, or a state of being exist. Physical action which can be seen, okay? Like you are driving, you are eating, तो वो दिख रहा है, right? Physical action, it can be seen कि action हो रहा है. But there are some mental actions also, those are also verbs. कुछ mental actions हैं जो दिखते नहीं है, visible नहीं है, okay? उसमें motion नहीं हो रहा है, but they are still a verb. For an example, thinking, रिकॉलिंग समथिंग, आप किसी चीज को रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर कास्टिंग योर माइंड बैक, ओके? इन दैट केस एक्शन इज बीइंग डन, एक्शन तो हो रहा है, ओके? सो दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, और इट कैन बी अ स्टेट ऑफ बीइंग. फाइन. Now, the important thing about verbs is that you know it is one of the crucial, or you can say imperative topic of grammar. ऐसा क्यों है? Because you know all the tenses, you know when we talk, when we do the conversation, और हम कोई भी writing piece of writing हम कर रहे हैं, right? We are writing anything, letter, application, anything. So we need sentences, right? और sentence में सबसे important जो role play करती है, that is verb. Okay, so that's why I'm saying that it is one of the imperative topic. Now every sentence contains a verb. मैंने अभी आपको बताया. Verbs are used with noun, sometimes with noun phrase or pronoun. Now tenses, our tenses revolve around the verbs. Tenses में अगर आप focus करेंगे तो what do we change? हम change क्या करते हैं? Like if you have to change the present tense into past tense or into future tense, what you're gonna do? You are simply going to change the form of the verb, isn't it? Or you will change the auxiliary. So let's see the examples. They will complete the project. Here the complete is verb. It is the main verb. We will understand कि main verb भी आखिर क्या होती है. I went to the market. Here कौन सा action हो रहा है? Went, मैं गया, which is the second form or past form of verb. So here went is again verb. तो I think verb का एक definition आपको clear हो चुका है, right? At the ground key what is verbs. Now we will see that how many types of verbs are there, right, in English language. Now you know classification again is a you know very important thing which you need to understand. So हम classification दो basis पे कर सकते हैं verbs का. Verbs की actually several classification है, और students बहुत ज़्यादा confused रहते हैं that what is principal verb, तो फिर transitive verb क्या है, right? So classification आप किस basis पे कर रहे हैं? Like same word can be a principal verb, okay, and same word, the same verb also can be the transitive verb. तो आपको ये समझना होगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जा रहा है, ओके? सो इफ यू विल सी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, अगर हम वर्ब्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्शन करेंगे, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स: प्रिंसिपल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मॉडल वर्ब. ऑलराइट. और इफ़ वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को अपना मेन फोकस करके क्लासिफिकेशन करते हैं वर्ब्स का, इन दैट केस देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, राइट? ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. फाइन. तो पहले हम on the basis of action, the three types: principal verbs, auxiliary verbs and modal verbs. What are these verbs? Okay, we will understand, and later on we will go for transitive and intransitive verbs. But keep on watching the video because here I'm gonna explain each type of verb in detail. So keep on watching the video.
मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, इनको सेकेंडरी नेम से भी हम जानते हैं, राइट। प्रिंसिपल वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब, हम उसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं या जो भी आप नेम यूज कर रहे थे अब तक, काइंडली गो ऑन विद द सेम। ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ यू आर चेंजिंग द नेम सो द मीनिंग इज ऑल्सो गोना बी चेंज्ड, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑलराइट। आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रिंसिपल उसका स्कूल का नेम है और मेन उसका घर का नेम है, राइट, द पेट नेम। सिमिलरली ऑक्सिलरी का इन स्कूल ऑफिशियल नेम है ऑक्सिलरी और घर पर उसको प्यार से हेल्पिंग बुलाते हैं। तो द पर्सन इज सेम, ओके, पर्सन तो सेम है, पर्सनैलिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। तो मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब बेसिकली उसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज इट डज द प्राइमरी एक्शन इन द सेंटेंस, ऑलराइट। लाइक द काउ इज ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे मेन एक्शन क्या हो रहा है आप मुझे बताइए? ड्रिंकिंग, राइट। इट कैन बी सीन इफ समबडी इज ड्रिंकिंग वाटर, फिजिकल एक्शन है, राइट, मेंटल एक्शन नहीं है, इट कैन बी सीन और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, राइट। तो ड्रिंकिंग इज हियर मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली दे एड्स ग्रामेटिकल मीनिंग टू अ क्लॉज और टू अ सेंटेंस। ये ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड करती हैं एक सेंटेंस में। चलिए मैं इसको इजी कर देती हूँ। Basically they are the helping verb, okay, like the cow is drinking water. So here main verb क्या थी? अभी हमने सेम सेंटेंस में देखा, drinking was the main action, तो it was the main verb। अब यहाँ पे is क्या कर रहा है? what is doing, ये जो verb है is, जिसको हमने auxiliary या helping verb कहा, ये क्या कर रहा है? ये main verb जो है drinking उसको support कर रहा है। Fine, so that's why it is known as auxiliary or helping verb। Let's see another statement। She will go to the market tomorrow। Here go, मेन एक्शन क्या होगा? जाना होगा, मेन एक्शन। सो गो इज द प्रिंसिपल वर्ब। नाउ बिफोर गो देयर इज अ वर्ब जो कि गो को सपोर्ट कर रहा है, एडिशनल ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड कर रहा है। विल से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, इजंट इट? अगर मैं विल को हटा दूं और सिर्फ यहाँ पे गो तो नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इट विल बी गोज, राइट। या फिर हम प्लूरल कर दें इसको, यू कर दें, यू गो टू द मार्केट, तो यू टेल मी कि ये टेंस चेंज हो जाएगा या नहीं? इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऑलराइट। तो यहाँ पे विल जो है वो ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। अब मैं इसको बहुत ही ईजी कर देती हूँ आपके लिए, ओके। एक हम लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, योर मदर इज एट योर होम, ओके, एंड द गेस्ट्स अराइव। आपके घर पे आपकी मदर है, इन जनरल जो होता है, ओके, एंड योर गेस्ट्स आर देयर एट द डोर स्टेप। हु इज गोइंग टू होस्ट द गेस्ट? जो आपके गेस्ट आए हैं उनको होस्ट कौन करेगा? आपकी मदर, राइट। तो हम आपकी मदर को मान लेते हैं प्रिंसिपल या मेन वर्ब, क्लियर? Because she is the main person at home who is going to host the guest, all right। Second में आप क्या करेंगे? What you're gonna do? For an example, your mother can ask you like just go to the shop and bring a packet of milk, और जाके बिस्किट्स ले आओ। वही नमकीन नहीं है, just go and bring some नमकीन और स्नैक्स फ्रॉम द शॉप। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। तो वॉट यू गोना डू, आप जो मेन वर्ब है यानी कि जो आपकी मदर है उनको हेल्प कर रहे हो, राइट, इन डूइंग द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इज इट क्लियर? सो यू आर helping verb, auxiliary verb, why? Because you are helping the main verb। आप main verb को, principal verb को help कर रहे हो in doing the small chores, clear? Is it clear? Now अब आप मुझे बताइए, in this sentence she is an intelligent girl, is the underlined verb is what? जो underlined verb है is, वो क्या है? अभी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर is auxiliary है, तो यहाँ पर भी इज जो है वो ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एट द बॉटम लेवल, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपैटिटिव एग्जाम। यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब है, ना कि ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। क्यों है ऑक्सिलरी वर्ब? अगेन वी विल अंडरस्टैंड विद द सेम एग्जाम्पल। आपकी मदर घर पर नहीं है, फाइन, योर मदर इज नॉट एट होम, अगेन द सेम सिचुएशन इज देयर, गेस्ट्स अराइव्ड, गेस्ट आपके घर आए। Now you tell me who is going to play, who is going to host those guests। उन गेस्ट, जो गेस्ट आपके घर आए उनको होस्ट कौन करने वाला है? मदर घर पर है ही नहीं। डोंट यू थिंक सो कि जो हेल्पिंग वर्ब थी, यानी कि आप जो पहले छोटे छोटे काम कर रहे थे, लाइक ब्रिंगिंग द मिल्क फ्रॉम द शॉप और ब्रिंगिंग द स्नैक्स फ्रॉम द शॉप और टेकिंग आउट द कप्स फ्रॉम द कंटेनर और एनीथिंग एल्स, तो वो काम अब आप करोगे, आप मेन काम करोगे। नाउ यू आर गोना मेक द टी, नाउ यू आर गोना सर्व द वाटर टू द गेस्ट, एवरीथिंग आप करोगे। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब यानी कि मदर जो है वो घर पर है ही नहीं, तो मदर की ड्यूटी कौन कर रहा है?
ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप कर रहे हैं। अभी सेंटेंस में देखिए, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। कैन यू सी एनी मेन वर्ब? यहाँ पे कोई मेन वर्ब दी गई है क्या? नो, मेन वर्ब नहीं है, यानी कि मदर इज नॉट एट होम। और अगेन गेस्ट्स आ चुके हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब थी इज, क्लियर, इन द एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, ओके, जो हमारी ऑक्सिलरी है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इट इज गोइंग टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, क्लियर। यानी कि इस सेंटेंस में क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, मम्मा घर पे नहीं है, क्लियर, तो आप ही गेस्ट्स को होस्ट करेंगे, आप ही मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है। I hope I made the things very clear by giving this example, or I don't think so you are gonna forget this. So principal verb और auxiliary verb I think आपको clear हो चुका है। Clear, it depends on the structure of the sentence. Same helping verb जो है वो main verb भी हो सकती है, clear, in the absence of principal verb. Now principal verbs का again further can be classified. Principal verbs or main verbs they can be further classified into two types. मेन वर्ब्स को हम आगे भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में। फाइन, तो हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे अगेन कि जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं उनकी रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं। सो लेट्स सी अगेन, वी विल डू द कंपैरिजन, ओके। कंट्रास्ट करने से चीज़ें हमें बेटर समझ आती हैं। सो बहुत ही ईजी है, यू नो कि कोई भी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब अगेन समटाइम्स अगेन मेन वर्ब से मेरा मतलब वही है कि इफ इट इज प्लेइंग द मेन रोल इन द सेंटेंस, क्लियर। जैसे कि डू है, डू sometimes it can be the main verb also and sometimes it can be auxiliary also, clear। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि वो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है या ऑक्सिलरी का। सो हियर रेगुलर वर्ब्स आपको पता है दैट वर्ब्स कैन बी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब्स की, देयर आर थ्री। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हमने ऐसे भी याद किया होगा, माइट बी V1 लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वॉट एवर इज सूटेबल फॉर यू, आप उसको उस तरीके से कोरिलेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो। तो मैंने ब्रैकेट में इसीलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंशन कर दिया। प्रेजेंट इज बेसिकली डिनोटिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट इज डिनोटिंग द second form of verb and past participle is denoting third form of verb. Is it clear? So now let's understand कि regular और irregular verbs क्या होती हैं। Basically when we add ed to form the past and past participle form of verb, जब हमें V2 या V3 को फॉर्म करने के लिए ed ऐड करना पड़ता है सिर्फ, just ed in the first form or in the present form of verb, clear? दैट इज कॉल्ड द रेगुलर वर्ब्स। आप देख सकते हैं ना एक रेगुलर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लाइक बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, क्योंकि लास्ट अल्फाबेट ऑलरेडी ई से फिनिश हो रहा था तो आई जस्ट एडिड डी। अगर लास्ट में ई नहीं होता इन दैट केस आई मस्ट एडिड ई डी। अगर नहीं होता लाइक इंजॉय, देखिए इंजॉय लास्ट में ई नहीं है, दैट्स वाई आई एडिड ई डी, राइट। एक्ट अगेन देर इज नो ई एट द एंड, तो एक्टेड, एक्टेड। सो व्हेन वी एड डी or ed in past and past participle to form the second and the third form of verb, right, in the first form of verb, यानी कि present form में या verb की first form में जब हम ed या d ऐड करके V2 या V3 ओके फॉर्म करते हैं, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन रेगुलर वर्ब्स। और ये रेगुलर है तो यू कैन सी एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ed पैटर्न क्रिएट हो रहा है। Now let's understand irregular verbs. तो if you have watched my previous video of degrees of comparison, मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि कोई भी irregular student है, वो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप बता नहीं सकते कि वो कब जाएगा स्कूल, बिकॉज कोई पैटर्न ही नहीं है, इरेगुलर है, स्कूल नहीं जा रहा, कॉलेज नहीं जा रहा, कोई क्लास नहीं अटेंड कर रहा, इरेगुलर है, पंचुअल नहीं है, तो कोई पैटर्न नहीं क्रिएट होता उसका लाइफ में, क्लियर। जैसे कि रेगुलर है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर कॉलेज जा रहा है, सो अ पैटर्न विल बी क्रिएटेड ना कि भाई वो ऑल्टरनेट डेज जा रहा है या फिक्स टाइम पे जाता है, ये क्लासेस हैं जो वो अटेंड करता है रेगुलरली। इरेगुलर है, वो कभी भी नहीं अटेंड करेगा और इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड। तो यू कैन सी हियर इन प्रेजेंट व्हेन वी आर फॉर्मिंग पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इरेगुलर वर्ब्स का। लाइक break is the first form, broke is the second and broken is the third. Drink is again present form of verb, drank is past and drunk is past participle. आप देख रहे हैं किसी में भी कोई भी फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ईट, एट, ईटन, बाय, बॉट, बॉट, कम, केम, कम। अगेन इसको तो आप लर्न कर लीजिए, बहुत सारे एरर्स यहीं पे हो जाते हैं। कम, केम, कम, V1 यानी कि प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर सेम, सिर्फ पास्ट चेंज होती है, क्लियर, वो भी उसमें एक लेटर एक वावल चेंज होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए चूज,
they are removing and adding the alphabet. Choose, then one vowel is removed, o को remove कर दिया तो second form हो गई, and then they added n and it became the past participle form. तो irregular forms होती हैं जो कोई भी pattern follow नहीं करती हैं और they are not changed into past and past participle by adding ed और d. alright, तो I think आपको regular और irregular verbs का भी clear हो गया होगा. अब क्वेश्चन आता है कि इरेगुलर वर्ब्स का क्या करें. तो व्हेन वी डू टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, जब हम ये करते हैं, कुछ टाइम के लिए करते हैं, वी डू सम प्रैक्टिस, सो ऑटोमेटिकली दीज वर्ब्स आर स्टोर्ड इन आवर ब्रेन. ओके, एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो लर्न भी कर सकते हैं बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल लर्न इट. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अब आप मुझे बताइए, वापस आ जाइए, दैट वेयर वर वी. ये जो मॉडल वर्ब्स हैं किसका पार्ट था? इफ यू रिमेंबर, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हमने क्लासिफिकेशन किया था वर्ब्स का 3 टाइप्स में: प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एंड द थर्ड वाज मॉडल वर्ब्स, राइट. तो ये अभी हम एक्शन बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वर्ब्स का, वहां चल रहे हैं. मॉडल वर्ब्स अगेन अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स ही ये होती हैं. आप कह सकते हैं अ टाइप. मैंने क्या कहा? अ टाइप, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब्स, अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. दैट्स वाई जो मॉडल्स होती हैं हम इनको टेंसेज में स्टडी नहीं करते हैं. इफ यू हैव एनी बुक ऑफ इंग्लिश, आपने देखा होगा कि मॉडल्स जनरली आर गिवन एज अ सेपरेट सब टॉपिक, राइट, और टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सिलरीज तो हैं बट दे आर यूज्ड इन स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें कोई एबिलिटी शो करनी है, पॉसिबिलिटी शो करनी है एक्शन में, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, प्रॉमिस, इंटेंशन, रिक्वेस्ट, कोई भी कंपल्शन या विश शो करनी है, इन दैट केस वी यूज मॉडल वर्ब्स, राइट. लाइक वी शुड हेल्प द पुअर. यहाँ पे शुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज सिंपली गिविंग एन एडवाइस, करना चाहिए. नाउ एडवाइस इट्स नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड. कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता. इट मे रेन टुमारो एज द स्काई इज क्लाउडी. यहाँ पे मे क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, राइट. क्योंकि स्काई जो क्लाउडी है तो पॉसिबिलिटी है देयर कैन बी रेन, देयर विल मे बी रेन टुमारो. I will complete this task by 4 p.m. So again, what is being shown here? Here we are showing that the possibility is there. Again, could you pass the salt? You so here could जो है एक मॉडल वर्ब है. जितने भी ब्लैक वर्ड्स हैं they are model verbs. Okay, और could यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? Could is showing the request. Clear? आई नो कि यहाँ पे प्लीज का यूज नहीं हुआ है बट जो कुड है वो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं. जब मैं मॉडल्स कराऊंगी डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. अभी सिर्फ हम वर्ब समझ रहे हैं तो आई एम जस्ट गिविंग यू द सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द वर्ब्स. क्लियर? सो आई होप मॉडल वर्ब्स क्लियर हैं आपको. सेकेंडली, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड विद V1 इन एक्टिव वॉइस. ठीक है, मैं ऐड कर देती हूँ. नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन किया था इन द इंडेक्स आई शो यू, तो अब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. अगेन बहुत ही ईजी है, रादर देन गोइंग इन डेप्थ रीडिंग द डेफिनेशन, मैं आपको बता देती हूँ. When transitive verbs is a type of verb which requires an object, यानी कि transitive verbs के पास object का होना mandatory है, otherwise meaning जो है वो clear नहीं होता है, right? On the another hand, intransitive verbs, they don't require any object, they are free, उनको object चाहिए ही नहीं. Clear? Without object वो अपना meaning खुद clear कर देती हैं. Got it? So transitive verbs require an object. Intransitive verbs, they don't require any object to make their meaning or to make their sense clear. Fine. अब यहाँ पे हम example से समझते हैं. If I say the teacher gave, और मैं full stop कर दूँ, the teacher gave, is the meaning clear? Teacher ने दिया, क्या meaning clear हो गया? No. Teacher ने दिया, क्या दिया? We need an object ना, क्या दिया भाई? Like copy दी, book दी, assignment दिया, project दिया. सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एन असाइनमेंट, राइट. तो यहाँ पे जो वर्ब है गेव, उसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगाती हूँ तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे जो गेव वर्ब है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? ही बॉट अ न्यू बाइसिकल. अगेन यहाँ पे मैंने कहा ही बॉट, उसने खरीदा. क्या खरीदा? इज द मीनिंग क्लियर? उसने खरीदा. क्या खरीदा भाई? वी नीड द ऑब्जेक्ट. क्या खरीदा? हमें आंसर चाहिए. मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो वी रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. सो हियर अ न्यू बाइसिकल इज ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो अगेन बॉट इज यूज्ड इन ट्रांजिटिव मैनर, सॉरी.
नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव देख लेते हैं. मैंने कहा इट रेन्ड, मैं यस्टरडे भी अगर हटा दूँ तो भी मेरा मीनिंग और सेंस क्लियर हो जाएगा. इट रेन्ड, कल मतलब बारिश हुई. इट रेन्ड, बारिश हुई, मीनिंग क्लियर है. डू यू थिंक सो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नो, मीनिंग इज क्लियर. क्लियर. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लाइक द गर्ल इज डांसिंग, द गर्ल इज डांसिंग. डू यू थिंक सो कि एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग क्लियर करने के लिए? नो. सो यू कैन रीड द लेफ्ट एग्जाम्पल्स बाय योर सेल्फ, ओके, एंड अंडरस्टैंड. मैं अगेन बता देती हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स के पास, अदरवाइज द मीनिंग और द सेंस विल नॉट बी क्लियर. ऑन द अनदर है इंट्रांजिटिव, उसकी जस्ट ऑपोजिट है. मीनिंग अपने आप क्लियर कर देती है वर्ब, ऑब्जेक्ट की उसको रिक्वायरमेंट नहीं है. इन एडिशन टू दैट, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी. इफ यू आर गुड एट हिंदी, अगर आपने हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपने डेफिनेटली सकर्मक और अकर्मक क्रियाज पढ़ी होंगी. तो ये सेम है, राइट? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स इज सेम, सकर्मक एंड अकर्मक क्रिया. ऑलराइट, वन मोर थिंग. हम वैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बुक्स में भी टॉपिक्स ऐसे ही दिया होता है और कोई कंफ्यूज ना हो. दैट्स व्हाई आई ऑल्सो क्रिएटेड इन द सिमिलर मैनर. बट ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है. क्लियर? क्योंकि जो वर्ब्स हैं वो फिक्स नहीं होती हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन एडिशन टू दिस, ये मैं नॉलेज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ. तो रादर देन सेइंग ना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, वी शुड से दैट दिस वर्ब इज यूज्ड in a transitive manner या फिर this verb is used in intransitive manner. intransitive manner क्यों, ऐसा क्यों हम कहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो सेम वर्ब है, लाइक गेव है या कोई और वर्ब है, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते. कभी कभी वो इंट्रांजिटिव मैनर में भी यूज हो जाती है. क्लियर? और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव मैनर में भी यूज हो सकती है. तो दैट्स वाई हमें फिक्स नहीं करना चाहिए. बट अगेन क्योंकि हम बुक से भी साइड स्टडी करते हैं, वी टेक द रेफरेंस फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो. सो जस्ट कीप इन योर हेड कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. डोंट बी परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ as we have done a lot of a classification, we have understood each type of verbs, कैसे कैसे classification होता है. so it's the high time to do some brainstorming ताकि आपको पता चले कि आपने कितना समझा. फाइन. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस थ्रो किए हैं. यू हैव टू जस्ट आंसर टू योर सेल्फ. ओके, प्ले द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग इट एंड गो विद मी एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो इन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे. आपको बताना है ईट्स जो है वो क्या है, वेदर इट इज ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. क्विकली थिंक. अगर देखिए ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगी और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव होगी. अगर आप मुझे बताइए शी ईट्स के बाद फुल स्टॉप कर दूं मैं, शी ईट्स, आपको नहीं लगता कि शी ईट्स वॉट? हमें आंसर चाहिए वॉट का. भाई शी ईट्स वॉट, क्या खाती है, हमें चाहिए ना. वी नीड द आंसर ऑफ वॉट. तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा. ऑलराइट, मूव अहेड. दे हैव परचेज्ड अ न्यू काउच. अभी हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी पढ़ी थी, राइट? आप मुझे बताइए परचेज्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वेदर इट इज रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब. अगेन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. रेगुलर में बताया था मैंने आपको दैट द रेगुलर स्टूडेंट गोज टू कॉलेज और स्कूल रेगुलरली, एक पैटर्न क्रिएट होता है. इरेगुलर तो भाई कोई पैटर्न ही नहीं है. इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज और मूड, जाएगा या नहीं. तो आप मुझे बताइए परचेज्ड क्या है, लास्ट में ईडी भी आ रहा है. Yes, it is regular verb. Next is Tina is going to the market. अब यहाँ पे is जो underline word है वो main verb है या auxiliary है. Again focus here, is going. Just think and pause the video. I'm just giving the answers quickly. आप video pause करते रहिए. So Tina is going to the market here. is auxiliary verb. Clear? क्योंकि वो going जो कि main verb है, मम्मा है, mother है, उनको simply help कर रही है, right? तो auxiliary है. I could swim when I was 4. यहाँ पे कुड जो है वो मेन वर्ब है या मॉडल है, आप मुझे बताइए. सो अगेन इट इज मॉडल. क्यों? क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी शो कर रहा है. व्हेन आई कुड स्विम, मैं स्विम कर सकता था पास्ट एबिलिटी है तो मॉडल है. द टीचर और मेन वर्ब तो क्या है, मेन वर्ब क्या है, आगे भी थोड़ा सा समझ लीजिए. मेन वर्ब क्या है? स्विम, राइट? द टीचर गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे बताइए कि गेव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है. ऑब्जेक्ट चाहिए सो इट विल बी ट्रांजिटिव. If it doesn't require an object, then it will be intransitive. So here gave is transitive. Last but not the least, I cough strangely. यहाँ पे cough क्या है? Think and answer. So cough is here intransitive because object उसको नहीं चाहिए. अगर आप strangely को भी remove कर देंगे and I cough या I coughed भी कर देंगे, meaning is clear, the sense is clear.
So I hope you must have answered all the questions correct. Thank you so much for giving your time and loving and giving your support to our channel Gleaming Grammar. Kindly share this video with your friends and relatives. Thank you so much. Have a safe day.